Welcome back, students. Today we are going to cover essay number 12. Without wasting any time, let's quickly begin with today's session. First of all, we will just read what is the question asked to you. Some people believe that teenagers should do unpaid community work in their free time. This can benefit teenagers and the community as well. To what extent do you agree or disagree? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ लोगों का ये मानना है टीनेजर्स को कम्युनिटी वर्क करना चाहिए दैट इज नॉट पेड टू देम। इससे टीनेजर्स को ही बेनिफिट नहीं होगा बल्कि कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगा इसका। यू अग्री और डिसअग्री विद दिस टॉपिक। सो दिस इज रिलेटेड टू टीनेजर्स, कम्युनिटी वर्क, सोसाइटी। इनमें से किसी भी टर्म को यूज करके यू कैन बिगिन योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। It is rightly said that children are the backbone of a nation. A large number of people believe that youngsters should be encouraged to initiate social work. This will result in a flourished society and can contribute towards the individualistic growth of youngsters. I strongly stand with the fact that such motivation can bring out responsible citizens. जैसे कि हमने often सुना भी है, we have read it many places कि जो चिल्ड्रन हैं या टीन एजर्स हैं दे आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन। सो देयरफॉर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए सोशल वर्क करने के लिए। इसका क्या रिजल्ट होगा? इट विल रिजल्ट इन अ फ्लरिश्ड सोसाइटी, मीन्स वेल एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी होगी इससे, और ये हेल्प करेगा एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। I strongly stand with the fact that such motivation can bring out responsible citizens. ये है मेरा opinion, which is the last line of introduction, that I strongly stand with the fact कि मैं इसको favor करती हूँ and I strongly stand with it कि जो ऐसी motivation है to do unpaid community work ये responsible citizens बनाने में मददगार है, means it is helpful. I am favoring the topic. Therefore, what will be paragraph number 2? That is point of agreement क्या होगा मेरे opinion की favor में। First of all, let us read paragraph number 2. To begin with, any social work by youngsters can be associated with their holistic development because doing so they can communicate with different people, thus polishing the verbal skills. For example, if a drive is promoted to convince rural people to send their children to school, can prove to be a convincing attitude along with the development of interpersonal skills. This is a real life learning to deal with diverse people there. Learning such skills will help them for lifetime in every arena. Apart from this, ethics like tolerance, patience and team spirit can be learned. Such young minds can serve the country with enthusiasm, promoting the feelings of fulfillment and gratitude. Moreover, experiencing multiple cultures and traditions make their prospect broad that acts as a feather in their cap. सेकेंड पैराग्राफ में सबसे पहले आई थिंक आपने भी नोटिस किया होगा देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है। स्टूडेंट्स, दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स। मुझे लगा कि इन दिस टॉपिक आई हैव पुट सो मेनी वर्ड्स, यू शुड ऑल्सो नोट डाउन। सबसे पहले हम वोकैबुलरी वर्ड्स इस पैराग्राफ के जो हैं उसे डिस्कस करते हैं। What is the meaning of holistic development? हमें अगर कहना हो इससे किसी पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है then we can use the word holistic development. Polishing the verbal skills, communication skills को अच्छे तरीके से enhance करने के लिए you can use the word polishing verbal skills. Convincing attitude, what is the meaning? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ली है कि लोगों से मिलना टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, इसमें कौन सी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं? मीन्स कन्विंस करना किसी को। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड देन इट इज कॉल्ड कन्विंसिंग एटीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स? दीज आर ऑल द स्किल्स दैट आर रिलेटेड, मीन्स व्हेन यू टॉक टू समबडी, आप किसी से मिलते हो, व्हाट आर द एटिकेट्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू मस्ट नो, इन्हें हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। इफ़ यू गो बाय डेफिनेशन तो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं बिहेवियर और टैक्टिक्स या स्किल्स जो पर्सन यूज करता है दूसरे से बात करने के लिए इन एन इफेक्टिव मैनर, राइट। उसके बाद आई हैव यूज्ड रियल लाइफ लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग को रियल लाइफ लर्निंग भी कहते हैं। डाइवर्स मीन्स वैरायटी। इन एवरी एरेना, इन एवरी सेगमेंट की जगह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एरेना।
मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं रिलेटेड टू एथिक्स लाइक टॉलरेंस मीन्स किसी को या किसी चीज को टॉलरेट करने की कैपेसिटी, पेशेंस, टीम स्पिरिट, एक टीम में कैसे काम किया जाता है उसे हम कहते हैं टीम स्पिरिट। फुलफिलमेंट मीन्स यू आर कंटेंटफुल, gratitude means an attitude of thanksgiving, right? So these are the words that you can also note down. अब हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 2। स्टूडेंट्स, मैंने कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं अपने ओपिनियन की फेवर में। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी यंगस्टर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं इट हेल्प्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन्स उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। देन इसी के साथ मैंने पॉइंट नंबर 2 को क्लब कर दिया है दैट उनकी पॉलिश होती हैं कौन सी स्किल्स, वर्बल स्किल्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, वो ये रियल लाइफ लर्निंग सीखते हैं, राइट। देन आई हैव इंक्लूडेड एन एग्जाम्पल एज माई पॉइंट नंबर 3। माई पॉइंट नंबर 3 इज ऐसी एक्टिविटीज से जो चिल्ड्रन है दे लर्न कन्विंसिंग एटीट्यूड। सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव इंक्लूडेड एन एग्जाम्पल। मान लीजिए देयर इज अ ड्राइव, एक ऐसी ड्राइव चल रही है जिसमें कि आपको रूरल लोगों को कन्विंस करना है टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं देन यू लर्न हाउ टू कन्विंस पीपल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ वेरी रियल लाइफ लर्निंग। रियल लाइफ लर्निंग है जिसमें आप वैरायटी ऑफ लोगों को मिलते हैं। आफ्टरवर्ड्स पॉइंट नंबर 5 इज यू लर्न द क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज आप सीखते हैं? टॉलरेंस, पेशेंस, टीम स्पिरिट, और ऐसे जो यंग माइंड्स हैं वो कंट्री को सर्व कर सकते हैं विद फुलफिलमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। लास्ट में आई हैव इंक्लूडेड पॉइंट नंबर 7 कि जब भी आप मल्टीपल कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को यू एक्सपीरियंस देम देन इट टेंड्स टू ब्रॉडन योर प्रोस्पेक्ट। आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका सोचने का लेवल है, योर माइंड गेट्स ब्रॉडन, दैट एक्ट्स एज अ फेदर इन देयर कैप। स्टूडेंट्स, दिस इज एन इडियम विच इज कॉल्ड फेदर इन देयर कैप। So therefore all these points are clubbed together जो कि बड़ा ही strong और एक logical paragraph बनाते हैं regarding my opinion. Now we are going to discuss the flip side. Paragraph number 3. However, it is rightly said that no rose without thorns. Can we ignore the drawbacks? It is a trend nowadays to go to school, participate in extracurricular activities. This is a pressure of peers, parents, and teachers to mark an edge in this competitive world. Under such circumstances, how can one expect the young children to serve society? This extra pressure can bring resentment in their mind. माना जाता है there is no rose without thorns. बिना कांटों के there is no rose. Right? This is again an idiom. हम इसके ड्रॉबैक्स को इग्नोर कर सकते हैं. This is a question that I have asked. आजकल what is the trend? बच्चे स्कूल जाते हैं, दे पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, पूरा प्रेशर होता है पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, ताकि वो स्टैंड आउट हो सकें फ्रॉम द क्यू इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस में व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ ह्यूज प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, तो क्या उनसे ये एक्सपेक्ट करना दैट दे सर्व द सोसाइटी, इज इट राइट? ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग रिजेंटमेंट इन देयर माइंड। सो दिस इज एन आइडिया अबाउट द फ्लिप साइड। लोग डिसफेवर करते हैं कि टीनेजर्स को अनपेड कम्युनिटी नहीं करनी चाहिए अपने फ्री टाइम में। सो व्हाट आर द रीजंस? नाउ कम्स द कंक्लूजन। To conclude, I would strongly favor the notion that for a teenager doing unpaid work is indeed good, but with proper monitoring and care, this will avoid unfavorable consequences. कंक्लूजन में मैंने बोला कि मैं स्ट्रांगली फेवर करती हूँ इस बात को कि जो टीनेजर हैं उन्हें अनपेड वर्क करना चाहिए, उनके लिए ये अच्छा है, बट प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर केयर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो अनफेवरेबल रिजल्ट हैं, मीन्स जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन फ्रेम द आंसर। लेट मी अगेन समराइज यू। सबसे पहले आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज द क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन दी मैंने टॉपिक की। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज माय ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है कि टीनेजर्स को अनपेड कम्युनिटी वर्क्स करने चाहिए। उसकी फेवर में आई हैव मेंशन्ड 6 to 7 डिफरेंट पॉइंट्स। देन आई हैव डिस्कस्ड द फ्लिप साइड कि जो लोग इसका डिसफेवर करते हैं, व्हाई डू दे डू सो। उसका रीज़न बताया दैट देयर इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज प्रेशर, एंड देन आई हैव कंक्लूडेड, ताकि सभी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर केयर के साथ, मॉनिटरिंग के साथ करेंगे तो हम जो अनफेवरेबल कंसिक्वेंसेस हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं।
Students, you can pause the video in case you want to read any paragraph. कोई point अगर आप दोबारा से study करना चाहते हैं, kindly rewind the video. Most importantly, there are huge vocabulary words that I have used. उन सारे words को with meanings आप note down कीजिए. And most important point is whenever you are learning a vocabulary, आप vocabulary को cram मत कीजिए. What is the right way related to something, related to a place, related to a person. जब भी next time you will read those words, then definitely you are going to catch the meaning of it. See you in the next class with the new essay topic. Till then, practice.